Good morning, student. The chapter which we're gonna start today is work, power and energy. So start with work. What is work? Whenever a force acting on a body produces a change in the position of the body, work is said to be done. That means if there is no change in the position of the body, there is no work. Like if you push a wall, the ball won't get displaced. अपनी जगह से हिलता नहीं है. Then we say there is no work done. Instead, if we push a door, then the door opens. Means door displace होता है अपनी जगह से, get displaced. Then we can say the work is done. So work is said to be done only when a body acted by a force moves actually through some distance in the direction of the force. So let us calculate the work done by a constant force. Work is measured by the product of the applied force and the displacement of the body in the direction of the force. That is, work is force into displacement in the direction of the force. Displacement किस दिशा में होनी चाहिए? जिस दिशा में आपका बल लग रहा है. So if a force F is acting on a body produces a displacement S in the body moves from here to here. कितनी displacement की है? S. In the direction of the force, then the work is said is equal to W is equal to F into S. If the force is making an angle theta with the direction of displacement, then हम क्या करेंगे? उसका जो component है, horizontal component है, एक vertical component होता है sin theta, जो horizontal component होता है वो f cos theta होता है. ये हमने vectors में भी पढ़ाया है. अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप vectors वाला वीडियो खोल के देखें, उसमें इस चीज़ को समझाया गया है component निकालना. So इसका हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया एफ कॉस थीटा, तो उसमें इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिकॉज एफ कॉस थीटा इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इफ़ थीटा इज़ 90 तब कॉस क्या हो जाएगा? 0 और वर्क डन भी आपका 0 होगा. इसका मतलब दैट इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द फोर्स नो वर्क इज़ डन. उदाहरण क्या दे सकते हैं कि अगर एक मज़दूर अपने सर पे ईंट उठा के सीधे रेखा गति में चला जा रहा है तो हम कहेंगे कि उसने कोई भी कार्य नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका जो बल है वो 90 डिग्री पे लग रहा है. किसके साथ? जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और जो बोझ उसके सर पे है वो वर्टिकली रखा है. तो एंगल कितना हो गया? 90. तो इस रिलेशन के अनुसार वो कोई भी कार्य, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है. Then force and displacement are both vector quantities. Hence by definition of scalar product आपने पढ़ा है, the scalar product of force F and displacement is F dot S, that is Fs cos theta. Theta क्या है? Theta is the angle between F and S. तो from equation 1 and 2 हमें क्या मिलेगा कि work done is F dot S. मतलब अपने आप में कार्य क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वो दो वेक्टर क्वांटिटी से बना है. Thus work is a scalar quantity of scalar product of force and displacement. मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अब डायमेंशंस निकालेंगे. इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का L. इसका भी वीडियो अगर आप पीछे ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा. तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या बन जाए? ml/t-2. अब है एब्सोल्यूट यूनिट्स. द SI एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. That is, if a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter in the direction of force, the work done is said 1 joule. That is, 1 joule is 1 Newton into meter. CGS अगर CGS यूनिट देखें तो वो होता है अर्ग. अर्ग क्या है? द फोर्स ऑफ 1 डायन, क्योंकि CGS में जूल नहीं होता. CGS में जो यूनिट होता है वर्क का वो है डायन. So if a force of 1 dyne produces a displacement of 1 centimeter in the direction of force, the work done is called 1 erg. 1 erg होता है 1 dyne into 1 centimeter. अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. ये भी रिलेशन हम पहले निकाल चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस में. आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं. 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर. 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन एंड 1 मीटर होता है 10⁵2 सेंटीमीटर. ये अगर आप डायमेंशन वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, उसको समझाया भी गया है. अब
जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 7 अर्ग आएगा, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है जिसे हम किलोग्राम मीटर कहते हैं, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर कहते हैं। तो वो kgm इज इक्वल टू 1 kg ऑफ फोर्स इंटू 1 मीटर, और 1 kg ऑफ फोर्स जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है इंटू 1 मीटर, दैट इज़ 9.8 जूल। यही आप अर्ग में भी निकाल सकते हैं। अब हम नेचर ऑफ वर्क डन बाय वेरियस सिचुएशन अगर हम पढ़ना चाहें तो कौन कौन से वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। मतलब अगर कोई बॉडी 0 से 90 के बीच में कार्य कर रही है तो द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, ठीक है, उसको पॉजिटिव कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 to 90 जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव वर्क आपको देता है। जैसे लॉन रोलर जिससे हम घास काटते हैं ना अपने लॉन की, इज़ पुल्ड बाय अप्लाइंग फोर्स अलोंग द हैंडल, जो कि एक्यूट एंगल बनाता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का क्या है? जब जो एंगल जो है थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 180, मतलब आपकी दिशा और आपका बल और विस्थापन की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट में है। जैसे कि हम जब स्लाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस में तो हमें कौन रोकता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम जिस दिशा में डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे होंगे फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। और ज़ीरो फोर्स क्या है? जो हमने देखा था कि जब आपका थीटा 90 हो या डिस्प्लेसमेंट 0, दैट इज़ व्हेन अ पुली इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, वर्क डन हम उसको 0 मान के चलते हैं। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, जो बार बार बदलता है। तो सो फार वी हैव कंसिडर्ड द वर्क डन बाय अ फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चल रहे हैं जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, बट मोस्ट ऑफन द वर्क डन द फोर्स डूइंग अ वर्क इज़ वेरिएबल, ठीक है, हमें वही वेरिएबल वर्क ही मिलता है। तो उसके लिए हमारा ग्राफ किस तरीके का होता है? जैसे ये अलग अलग वर्क है, ठीक है, ठीक है, जो स्प्रिंग का है, ठीक है, स्प्रिंग का एग्जांपल कोई भी आप 2 एग्जांपल से कोई भी एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। तो सपोज़ कि एक वेरिएबल फोर्स है तो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, आपने एक्स से x1 से x2 के बीच में इस तरह से इनको विभाजित कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल हैं। और फिर इसको हम और नैरोली डिवाइड कर सकते हैं और नैरोली डिवाइड कर सकते हैं। हम इसमें क्या देखते हैं कि वी डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट जो x1 से x2 के बीच हो रहा है इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल इंटरवल्स में हमने उसको बांट दिया है। दस द एरिया अंडर द कर्व इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, इनको स्ट्रिप्स में बांट दिया है। लेट अस कंसिडर द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x फ्रॉम x1 टू x1 प्लस डेल्टा। ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है वो नियरली कांस्टेंट क्या छोटे एरिया में है, तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं फोर्स को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग लेके चल रहा है। तो अगर मैं वर्क डन dw मानूँ तो इसका वैल्यू कितना होगा? dw इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा एक्स। f डेल्टा एक्स इज़ ऑल्सो द एरिया है ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, f इंटू ये f है इंटू ये डेल्टा एक्स है, तो इसका एरिया हो गया। तो ऐसे ही मैं अगर सारे एरियाज़ ले लूँ x1 से x2 तक, सारे एरियाज़ ले लूँ तो उसे मुझे क्या मिल जाएगा? f इंटू डी एक्स, ये मुझे वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखा है, इज़ ऑल्सो द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप। द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें जितने चले आ रहे हैं तो उनको हमने यहाँ से यहाँ तक सम कर दिया है, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेटली क्या है? अगर मैं इन सबको जोड़ती चलूँ तो एक्चुअली है क्या? इसके अंदर का एरिया, ठीक है। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को और छोटा बांटें तो आप देखेंगे कि डेल्टा एक्स का मान और कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वैल्यू विद इन द इंटरवल। दस स्मॉलर द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल डेल्टा एक्स, द एरिया अंडर द कर्व विल बी मोर नियरर एंड नियरर टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। सो इफ डेल्टा एक्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा है, तो इस पर लिमिट लग जाएगी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, मतलब इतना छोटा और छोटा कर दिया, छोटा छोटा छोटा, तो इतना छोटा कि जो डिफरेंस है वो 0 के करीब है। तब ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आपके इंटीग्रेशन में
चेंज हो जाएगा। तब हम इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2 fx into dx। सो न्यूमेरिकली दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन फोर्स कर्व एंड द एक्सेस एरिया एक्सेस बिटवीन द वैल्यूज़ x1 एंड x2 और जो कि हमको इस शेडेड रीजन में दिखाया गया है। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स है। मतलब जब भी हम वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, छोटे से एरिया का छोटा सा हम वर्क डन निकालेंगे और फिर पूरे एरिया के लिए उसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी बार इसका इस्तेमाल आगे अपने चैप्टर्स में कर सकते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं, वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, सिर्फ डेफिनेशंस हमको देखनी है। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इज मूविंग अ बॉडी डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय इट। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म पे है, बीच में आप किस पथ से किस उससे आप जा रहे हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इसका डेफिनेशन ही करना है, डेफिनेशन ही लिखना है। ऐसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो कि इफ़ द वर्क डन by the force or against the force is moving a body from one position to another depend upon the path followed by it। ठीक है, रास्ते पर निर्भर करता है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको इनमें सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है। अब हम बात करेंगे पावर की। पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एजेंट और अ मशीन इज कॉल्ड पावर ऑफ द एजेंट और द मशीन। तो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो इफ अ एजेंट डज अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क W फॉर टाइम इंटरवल T, तो उसका एवरेज पावर कितना होगा, P इज इक्वल टू W अपॉन T। और इंस्टेंटेनियस अगर हम निकालना चाहें तो dW/dt, क्योंकि D स्मॉल चेंजेस को शो करता है। अब पावर इज़ द रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज़ W एंड T, और ये भी एक स्केलर अपने आप में होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से dW का मान रखना चाहें F.ds, तो पावर dW/dt विल बी F.ds/dt। और ds/dt क्या होता है बच्चों, ये होता है V, तो इसकी जगह हम V रख देते हैं। ठीक है, तो FV फार्मूला होता है। ये एंटी पैरेलल अगर 180 है तो माइनस FV आता है। इसका यूनिट क्या है, यूनिट होता है वॉट। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज़ द वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड, तो पावर कितना होगा 1 वॉट। 1 वॉट होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। दूसरा यूनिट जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो है 1 हॉर्स पावर, जो 746 वाट्स के बराबर होता है। द पावर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन जो होता है वो 0.05 से 0.1 हॉर्स पावर के बीच में होता है। दूसरी CGS यूनिट जूल की होती है 10⁻7 अर्ग। इसको पुट हम करेंगे तो 1 वॉट होगा 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज 10⁻7 अर्ग प्रति पर सेकेंड। सिंस पावर इज इक्वल टू W/T, तो डायमेंशन फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। पावर वर्क का होता है mL2T-2 डिवाइडेड बाय टाइम का T, तो यहाँ पर ये ऊपर जाके -1 बनेगा, 3 बन जाएगा, तो mL2T-3। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। लाइक वर्क, एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर सेम दैट ऑफ वर्क, और मेजर्ड जो यूनिट है वो भी इसका सेम चलता है। Energy is different from power. Energy refer to the total amount of work that is the body can do, whatever be the time duration in which the work is done. On the other hand, the power of a body is the body's rate of doing work. That is, it depends upon the time in which the work is done. So energy has various forms such as mechanical energy होती है, heat energy, light energy, आपने सब पढ़ा है। लेकिन इस बार हम आगे के चैप्टर में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड नोट्स आपको दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ स्टिक टू द सिलेबस। काम आप अपना पूरा करिए और इसको कंप्लीट करिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।